history. We are asking about the past history of different things. We will discuss it later on, and as well as the physical examination, that is head to toe examination of the person. Now, why we are doing the health assessment? हम करते ही क्यों है health assessment? The first is to establish a database of clients' normal abilities, risk factors that can contribute to dysfunction and any current alteration in the function. तो एक तो हम इसलिए करते हैं कि we are collecting the data कि what are the normal ability of the person. Normally जो है person की क्या abilities है. Normal लोगों का भी health assessment करते हैं. Then we are finding the risk factor that can contribute to dysfunction. क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसको नॉर्मल उसको डिसफंक्शन कर सकते हैं. रिस्क फैक्टर में भी द पर्सन में बी हाइपरटेंसिव or the person may be obese. So these are the risk factors that can lead to further problems. And any current alteration in the function or presently अगर कोई alteration है उसके normal function में, normal function means normal body temperature is always normal. Okay, so normally we are telling it is 98.4 degree Celsius, degree Fahrenheit, and there may be slight change. But if it alteration in the function means the person is having fever, so we can assess the normal as well as if any dysfunction is there, any alteration or any change is there. Second is to get a clear picture of client's health status and health related problem. क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस का एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाता है अगर इफ वी आर डूइंग द हेल्थ असेसमेंट. क्लियर कट पिक्चर मींस कि द ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइंट से रिलेटेड कंप्लीट हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है. और आफ्टर द इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आल्सो कि व्हाट प्रॉब्लम द पर्सन इज हैविंग. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज. अगर हम किसी सिक पर्सन का हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज एंड व्हाट इज द एक्सटेंट, यानी कि डिजीज कितना फैल चुकी है, किस एक्सटेंट तक जा चुकी है, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान फॉर द केयर. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एट अर्ली स्टेज, यानी कि जो कंडीशन है वो वर्सन ना हो और ज़्यादा खराब ना हो. तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. Clear? Clear है purposes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The next is to determine the nature of treatment required for the client. अगर हमें पता चल गया है कि what all problems the person is having, the client is having, now we can plan accordingly the treatment. Okay, the medical person they are determining the nature of the treatment कि किस तरह का treatment client को चाहिए, and to get a holistic view of the client. Holistic view होता है in total view. In total means the same thing that physical, mental, social and spiritual. Means all the aspects should be properly taken care of. Then to contribute in medical research. अगर कुछ find out करना है कुछ, क्योंकि research work भी होता है. If some new disease is there, if some new problem is there, और if we are want to give the better care, तो चीजों में डेली डे बाय डे भी रिसर्च होती है और एक लॉन्ग टर्म वाली भी रिसर्च होती है. जैसे अभी रिसर्च हुआ था मेडिकल रिसर्च में, अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनी है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च कि डिजीज पता चली, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुआ, बट देयर इज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आल्सो and plus research in the field of vaccine also. Then the next is to identify client's strength, weakness, knowledge, attitude, motivation, support system and coping skill. When you are doing the assessment, जब भी आप assessment करते हैं तो एक interaction होता है patient के साथ, client के साथ, एक IPR maintain होता है. जब आप assessment करते हैं तो आप बातचीत भी करते हैं, आप कुछ पैरामीटर्स भी चेक करते हैं, आप डिजीज भी फाइंड आउट करते हैं, आप साइन एंड सिम्टम भी. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आप उस क्लाइंट की स्ट्रेंथ, क्या प्लस पॉइंट्स हैं उसके, क्या वीकनेसेस हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्लाइंट की क्या नॉलेज है. बिकॉज इफ यू वांट टू गिव द हेल्थ एजुकेशन या कोई हेल्थ इंफॉर्मेशन देनी है तो क्लाइंट की नॉलेज का लेवल हमें पता होना चाहिए कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है. देन क्लाइंट एटीट्यूड, एटीट्यूड उसका डिजीज के लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हाउ यू कैन मॉडिफाई एंड हेल्प हिम टू गेट रिड ऑफ डिजीज. देन मोटिवेशन, कि उसको कितना आप मोटिवेट करके बेटर जो है मोटिवेट करके बेटर उसके लिए तैयार कर सके. फिर उसका क्या सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम है या उसका सेल्फ का ही सपोर्ट सिस्टम है, ऑफिशियल सपोर्ट सिस्टम है,
और नेक्स्ट इज द कोपिंग स्किल, कि वो कैसे एडजस्ट करता है। बहुत सारी चीजें होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि somebody is having in case of amputation after the एक्सीडेंट के बाद एम्पुटेशन हो जाता है, कट हो जाता है, यानी कि लेग चला गया या हैंड चला गया या आई की इंजरी हो गई, तो उसके बाद वो किस तरह से कोप कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली डिजीज के साथ कोप करके लोग निकल आते हैं, लेकिन कोपिंग स्किल जो है जब कुछ लॉस हो जाता है बॉडी में, तो उसके बाद कोपिंग स्किल जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो कोपिंग स्किल पर्सन का कैसा है, हाउ द पर्सन इज, हाउ द क्लाइंट इज एडजस्टिंग। नाउ टू कंपेयर द हेल्थ स्टेटस विद द आइडियल स्टेटस, कि उसका हेल्थ स्टेटस जो है एट प्रेजेंट वट एवर इज द हेल्थ स्टेटस द पर्सन इज हैविंग, द क्लाइंट इज हैविंग, उसका आइडियल से, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड हेल्थ स्टेटस होना चाहिए उस पर्सन का, उससे कितना फर्क है, सेम है, डिफरेंट है, या काफी ज्यादा हेल्थ स्टेटस जो है वो डिटीरियोरेटेड है। जैसे नॉर्मली अगर हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, कई बार वेल बेबी क्लिनिक होता है, आपका अंडर 5 क्लिनिक होता है, तो उसमें हम बेबी का हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो हेल्थ असेसमेंट में क्या होता है कि नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, तो हम कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल पैरामीटर्स के कंपैरेटिवली क्या वो सेम है। अगर वो सेम होता है नॉर्मल, तो हम कहते हैं द चाइल्ड इज हेल्दी। अगर वो नॉर्मल उसके से कम होता है, तो उस कंडीशन में कई बार जो है बेबी मालनरिश्ड भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन में फिर और डिजीजेस भी हो सकती हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, क्वाशरकर और मरासमस भी हो सकता है। तो असेस करना होता है, कंपेयर करना होता है हेल्थ स्टेटस को विद द आइडियल स्टेटस, तभी हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि वेदर द हेल्थ स्टेटस इज अप टू द मार्क और नो। और अगर अप टू द मार्क होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं होता तो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। नाउ देयर इज सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो बहुत रूटीन में डेली में यूज होती है। फर्स्ट है जैसे डायग्नोसिस, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज। जैसे करते हैं ना कि डायग्नोज करते हैं, केस को डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोज करने का मतलब ये होता है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि डिजीज की नेचर क्या है और डिजीज किस लेवल तक जो है वो पहुंच गई है। डायग्नोसिस के बाद ही ट्रीटमेंट जो है वो फाइनलाइज करते हैं। जब तक हम डिजीज का हमें पता ही नहीं चलेगा डिजीज किस लेवल तक चली गई है, क्या नेचर है डिजीज की, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कर सकते। दिस इज द डायग्नोसिस। देन द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस इज द फोरकास्ट ऑफ द कोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। ये पहले असेस कर लेते हैं कि हाँ डिजीज जो है वो कितना लंबा जाएगी, क्या कोर्स होगा डिजीज का, तो हम उससे फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने के लिए। देन द इटियोलॉजी, इटियोलॉजी वर्ड यूज करते हैं हम कॉज के लिए, कि किसी भी डिजीज की कॉज क्या है, पूछते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी मींस कॉज ऑफ द डिजीज, तो इट इज अ साइंस ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज। नाउ साइंस एंड सिम्टम, दिस इज वेरी कॉमन, हो सकता है कि एग्जाम में भी आता है कि कोई आपको सिनेरियो दे दे, उसमें साइंस को अलग करने के लिए बोल दे सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में हमें ना क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे साइन है, साइन इज द प्रेजेंस ऑफ डिजीज दैट कैन बी सीन और एलिसिटेड, कि वो ऐसा साइन होता है जो हम डिजीज होती है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे फीवर, फीवर को आप टच करके भी फील कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर आल्सो यू कैन असेस। एंड द सिम्टम एनी एविडेंस एज द नेचर एंड लोकेशन ऑफ डिजीज नोटेड बाय द क्लाइंट। क्लाइंट खुद बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपने टच किया, टेम्परेचर चेक किया तो फीवर आया, लेकिन पेशेंट जो अपने डिस्कम्फर्ट जो बताता है वो सिम्टम होता है विच यू कैन नॉट सी विद योर आईज, या उसको मेजर नहीं कर पाते, लेकिन वो आपको पेशेंट बताता है। जैसे पेन है, पेन जो है वो आपको कौन बताएगा, पेशेंट बताएगा। तो पेन सिम्टम हो गया और साइन हो गया फॉर एग्जांपल फीवर। नाउ टू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, वन इज द सब्जेक्टिव एंड द अदर इज द ऑब्जेक्टिव। यानी कि वो जो सिम्टम्स आपको क्लाइंट बताता है वो आपके सब्जेक्टिव होते हैं, और जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। तो इजी होता है याद करना कि अगर ओ वर्ड है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ओ फॉर द बाय द ऑब्जर्वर, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट वे कि लर्न कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आर विद द ऑब्जर्वर। सो द सब्जेक्टिव सिम्टम्स, व्हेन द सिम्टम्स आर नोटेड बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ, जब क्लाइंट अपने आप बताता है, जैसे पेन फॉर एग्जांपल है, सिंपल है कि पेन, क्लाइंट अपने आप बता रहा है कि आई एम हैविंग पेन। अब पेन की इंटेंसिटी भी पेशेंट ही बताएगा, क्लाइंट ही बताएगा। देन द ऑब्जेक्टिव सिम्टम, व्हेन द सिम्टम आर नोटेड बाय द ऑब्जर्वर एज वेल एज बाय द क्लाइंट, ये दोनों लोग देख सकते हैं, क्लाइंट भी देख सकता है एंड सेम वे ऑब्जर्वर द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द केयर। फॉर एग्जांपल जॉइंटिस, जॉइंटिस में बड़े सारे चेंजेस होते हैं,
स्किन का कलर चेंज होता है, स्क्लेरा का कलर येलोइश हो जाता है. तो by this way the client can see himself or herself, and the observer can also observe the jaundice. So this is the objective that is observed by the care provider. Now the health history. Health history is the collection of subjective data in detail regarding client's health in a chronological order. So it is the way health history, before giving any care, before doing any assessment, we have to take the history of the person. So history is a collection of our data, that is a subjective data that is taken from the client. Client से हम step by step we are asking certain question, that is the health history. Now the factor affecting the collection of subjective data. अगर आप subjective data collect करते हो तो उसमें क्या-क्या factors होते हैं जो affect कर सकते हैं. It means कि all the factors should be well maintained so that the client should come out with his or her problem. तो factors जो भी है, factors का positivity होनी चाहिए so that the client can discuss the problem in a better way. जब तक आपको problem नहीं पता चलेगी, we cannot plan the care for the person. So first है physical setting. कि wherever you are asking the subjective data from the person or from the client, the setting should be such कि the person should be comfortable enough to speak the problem. Now the next is client's personality and behavior. कि how the client personality, whether the person is outward or introvert. So introvert person is not able to speak more, so we should try to take out the information from the client. So the client personality and how the client behave, that is also important to collect the data. Because sometimes if you take the example of females, mostly females, they don't want to come out with their problem that is related with their personal. If they are having some personal problem, so they are not coming out with their problem. So their personality and behavior is very much important. Now the next is nurse's personality and behavior. How comfortably, how properly the nurse is taking out the information from the client. So nurse's personality and behavior is also important for collecting the subjective data. Next is communication skill. This is very much important for each and every health personnel, because communication skill is the way to speak up and to take out the information from the other in a correct manner. So for communication skill, the important tool or the important thing we need is a good listener. We should not speak much. We should try to listen more and more. हमें ज़्यादा अच्छा सुनने वाला होना चाहिए. ज़्यादा अच्छा सुनने वाले होते हैं तो हम दूसरे से इंफॉर्मेशन निकालने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है. So now the next is patient's problem. So what is the problem the person is having, that is also important कि what information we are taking out from the person. And one more thing is there, according to patient problem also, that one more thing when you are collecting the data, that is the, it is not written here, but that is the confidentiality and privacy. That is also very important. If you are collecting the data, the person should feel secure, the person should feel confident, and the person should feel the privacy is properly maintained, so that the person will tell all the things. तो privacy and confidentiality बहुत important है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ भी आप information दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, मतलब this is for subjective data also, but in simple words also, be a good listener, communication skill अच्छा हो, plus confidentiality और privacy बहुत important है, then only the person will speak with the problem. तो problem हमेशा simple problems भी नहीं होती, लोगों की कुछ personal problems भी होती हैं, psychiatric में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है,